Good morning, children. So, we are in meeting in first lecture of chapter number 4. That is the diary from the diary of Annie Frank. Actually, because of limitation of space, I have written the diary of Annie Frank in short. But what is the name of the title? From the diary of Annie Frank. Right? From our material, it is page number 28. And textbook, it is chapter number 4. Now see children, before starting this chapter, let me remind you about some introduction of this title. Basically, if you remember, in 9th standard, when I was explaining you social science, I have talked lot about World War II, specifically about Hitler, right? How his madness pushed world to Second World War. I have made you to understand each and every topic that is called Treaty of Versailles and what injustice was done to Germany and how Germany reacted and how Hitler came into power and all these things. You know all that. Now, basically, my today's lecture is connected to World War II. Understood? My today's lecture is connected to World War II. Now see children, what happened? It is a real story, first of all. Right? Herself is Annie Frank, a girl of 10 to 12 years. Now you must be thinking, how can a girl of 10 to 20 years become a writer? But it is a reality. She did not intend to become a writer, but she just put down the memories of herself when she was alive. Why I am saying this? Because when her diary came into the hands of other people, means family members, she was not in this world. She was killed. How? At the time of World War II, no doubt, Hitler regained the lost pride of Germany. He fought for Germany. Understood? But one greatest mistake, which people of world will never forget or never forgive, was the Holocaust of Jewish people. From this incident, in Oxford Dictionary, a word Holocaust, Holocaust, which word? Holocaust, Holocaust. This word was added in dictionary. Right? Holocaust. Holocaust का मतलब क्या होता है? जनसंहार, mass killing. Why? Because as World War II was going on, as World War II started, for no cause of reason, Hitler had dislike towards Jewish people. And as it was a World War time, he got a chance. Basically उसको पहले से Jewish लोगों के प्रति नफरत थी, घृणा थी, और वॉर का समय आया, और पैरेलल वॉर के वक्त he built some concentration camps in a specific countries, and specifically these types of concentration camps were located in Poland, because Poland has a sizable amount of Jewish population, and he had total dislike towards Jewish population, total dislike. वो ऐसा सोचता था कि Jewish लोगों को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं है. Jewish race must be eliminated from this earth.
एक भी बंदा, छोटा बालक भी, अगर वो जूइश है तो उसको भी मार डालो, ताकि जूइश कम्युनिटी का इस दुनिया में से पूरा नाम निशान मिट जाए. And he ordered his soldier to carry out this activity. He started one department of killing Jewish. अभी हिस्ट्री की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, समय हमारे पास नहीं है, लेकिन ये होलोकास्ट के लिए उसका जो एक वफादार सिपाही था, जनरल था आर्मी का, जनरल आइकमैन, उसको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी. जनरल आइकमैन को यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि आप जूइश लोगों को ढूंढो और पकड़ पकड़ के उसको तरपा तरपा के पीड़ा यातना दे के उसको मार डालो कंसंट्रेशन कैंप में. और इस पे एक बहुत बढ़िया सी मूवी बनी है, शिंडर्स लिस्ट. 99 में ये मूवी बनी थी और उसके डायरेक्टर हॉलीवुड के बहुत मशहूर आज डायरेक्टर है, जिसने कई सारी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है, स्टीवन स्पिलबर्ग. He himself is a Jewish and he has lost his family in this Holocaust. उसने जो मूवी बनाई थी 99 में, पूरी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, लेकिन वो मूवी में से हमको पता चलता है कैसे कैसे जूइश लोगों को तरपा तरपा के मारा जाता था कंसंट्रेशन कैंप में. 3 घंटे की मूवी है, ब्लैक एंड व्हाइट. लास्ट में जो बच गए थे वो 5-10 मिनट का कलर फोटोग्राफी है. शिंडर नामक जो लड़का था, उसने उस वक्त तकरीबन 167 जूइश लोगों को बचाया था. कैसे बचाया था वो पूरी मूवी में है. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, in year 99 this movie bagged 11 Oscars out of 15. 15 ऑस्कार में से 11 ऑस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है मूवी के लिए, ऑस्कार अवार्ड्स, वो इस मूवी को मिले थे. और इस मूवी के बाद डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग लाइमलाइट में आ गए और वे हॉलीवुड के टॉप रैंक डायरेक्टर बने. अब पिक्चर की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको चांस मिले, आप देखो, अगर ये सब नॉर्मल हो जाएगा तो शायद हमारा एवी थिएटर है हमारे पास, वो शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या उस वक्त जूइश लोगों की हालत थी. जर्मन आर्मी ने they perform untold atrocities on Jewish people. You cannot explain this in words, क्योंकि इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है. Understood? तड़पा तड़पा के मारते थे, छोटे बड़े बुजुर्ग, युवान, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, सब. और कई भाग्यशाली थे जो छटकने में कामयाब हो गए. और उसकी वजह से ही जो आज इजराइल नामक कंट्री है वो बना है 1948 में. In order to escape the atrocities of Hitler, which was performed at the time of World War II, sizable amount of Jews were able to escape, and they moved southward from Europe, where at present they are settled, which is called Israel. ये लंबी कहानी है, हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे माहौल में एक जो 10-12 साल की बच्ची थी, एनी फ्रैंक, हर एल्डर सिस्टर, मदर एंड फादर एंड ग्रैंडमा, शी वाज हैविंग अ वेरी गुड फैमिली, बट अनफॉर्चुनेटली इन 1942 एवरीथिंग वाज लॉस्ट. सब मारे गए थे. लेकिन उसकी यादें, छोटी छोटी यादें, स्कूल की यादें, डर डर के पढ़ने जाना, अपनी टीचर से बहस करना, मतलब नॉट अ फाइट, बहस, बहुत बातूनी थी. चैटर बॉक्स उसको बुलाते थे उसके मैथ्स के टीचर. इट इज वेरी ब्यूटिफुली सिंप्लीफाइड, रिटन इन दिस डायरी.
वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसकी डायरी ये हाथ लगी, पब्लिश हुई, और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस डायरी वॉज पब्लिश्ड इन 16 लैंग्वेजेस ऑफ यूरोप. इट बिकेम वन ऑफ द हॉट सेलिंग बुक ऑफ यूरोप, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड में युद्ध का माहौल था. युद्ध के माहौल में भी एक छोटी 10 साल की बच्ची खुशी ढूंढना चाहती थी. कैसे वो अपने आप को अम्यूज करती थी, कैसे वो हंसती थी, खेलती थी, जब चारों ओर बमबारी हो रही थी, उसके नजर के सामने लोग मरते थे, गोलियां चलती थी, घर के बाहर तो जाना है कहीं नहीं. In the midst of all this situation, how she kept herself lively, not alive, lively. That is my title. The Diary of Annie Frank. बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज है, ग्रोसरी में मीनिंग्स दिए हैं, फिर मटेरियल में भी उसके आंसर्स है, तो आप फॉलो अप कर सकते हो. Take out your textbook or material. If you are referring material, I am teaching from material. I am on page number 28. Okay? So, let us see. Annie Lacy Mary, the full name of that girl. Born on 12th June 1929, died 15th March 1945, World War के बाद, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam. Amsterdam is the capital of Holland, क्योंकि उस वक्त तो पूरे यूरोप में हिटलर की आन थी. कई लोग उधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे, कोई देश की सरहदें नहीं थी. जहां मौका मिला भाग छूटते थे, खास करके जूइश लोगों, क्योंकि हिटलर के टारगेट में थे जूइश. अंडरस्टूड? ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्युपेशन ऑफ द नेदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर 2, हॉलैंड हिटलर नेदरलैंड, उस वक्त हिटलर ने नेदरलैंड जीत लिया था. Her family had moved to Amsterdam after the Nazi gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into Netherlands. पोलैंड पर जब हमला किया जर्मनी ने, बेसिकली शी वॉज फ्रॉम पोलैंड, जर्मन ऑक्युपाइड पोलैंड. जब पोलैंड जीत लिया तो वो लोग नेदरलैंड भाग गए कि भाई इधर कुछ शांति सुकून मिलेगा, सेफ्टी हैगी. लेकिन जर्मनी ने नेदरलैंड भी जीत लिया, अब कहा जाए, जल्दी तो एस्केप नहीं हो सकते इतने बड़े कंट्री में से. एज परसिक्यूशन मीन्स बिलीव, strong belief, drina, nafrat. As persecution against the Jewish population increased, जैसे जैसे हिटलर की जूइश लोगों के प्रति घृणा बढ़ती गई, नफरत बढ़ती गई, तब ज्यादा से ज्यादा जूइश लोगों की हत्याएं होने लगी, मरने लगे. Understood? As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942. बाहर का वातावरण बहुत तेज था, गर्म था, बहुत खतरा था. हाइडिंग के सिवा कुछ बचा ही नहीं था. In hidden rooms in her father's Otto Frank office building. लोग अंडरग्राउंड छोटे छोटे बंकर बना लेते थे, दीवारें तोड़ के. बाहर को ऐसा लगता है ये दीवार है, लेकिन दीवार के पीछे कुछ बंकर जैसा बना लेते थे, अपने आप को दिन के उजाले में छुपा लेते थे, क्योंकि कभी भी जर्मन आर्मी की रेड होती थी, कभी भी चेकिंग आती थी. व्हाट नॉट. अगर मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने बैठूं तो शाम हो जाएगी. आप समझ सकते हो लोग कैसे कैसे रास्ते निकालते थे अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए. फिर भी इट इज सेड Hitler killed 67 lakh Jewish people, 6.6 million.
ये ऑफिशियल आंकड़ा है, और ऑफिशियल तो उससे कई गुना ज्यादा होगा, तकरीबन 1 करोड़ के नजदीक जूइश लोगों की हत्या हुई थी। क्लियर? आफ्टर 2 years of hiding, the group was betrayed and transported to concentration camp system where Annie Frank died of typhus in Bergen-Belsen within 2 days. Her sister, Margaret Frank, her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find the diary which she had saved. किसी ने माहिती दे दी थी, क्योंकि उस वक्त में गद्दार लोग तो थे ही, ये लोग छिप छिप के रह रहे थे, लेकिन किसी ने भांडा फोड़ दिया कि इधर जूइश फैमिली रहता है। सोल्जर्स आए, पकड़ गए, पकड़ के ले गए, उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया। उधर उसकी मृत्यु हुई टाइफाइड की वजह से। उसकी सिस्टर और ब्रदर फादर जिंदा रहने में कामयाब हुए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया था, हिटलर ने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। तो ये थोड़े भाग्यशाली लोग थे जो एंड में पकड़ा गए और बच गए, वरना 39 से 44 तक जितने लोग पकड़ा गए थे वो सबका एक ही अंजाम हुआ था, मौत। और इसके बाद उसके परिवार के मेंबर्स को ये डायरी हाथ लगी, राइट? Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of the young diary of a young girl. उसकी वो बच्ची की याद थी। आज वो छोटी बच्ची तो दुनिया में है नहीं, तो इसके लिए, उसकी याद के लिए उसके पापा ने ये डायरी बिल्कुल अपनी 10 साल की लैंग्वेज की समझ से इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया। द टाइटल वॉज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, राइट? द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑन अ 13th बर्थडे एंड chronicles मतलब incidents, the events of her life from 12th June 42 until the final entry on 1st August 1944. 2 साल 42 से 44 तक जितने साल के किस्से बने 2 साल में, जैसे वो सब डायरी में लिखा गया है, क्योंकि दिस डायरी वॉज गिफ्टेड टू दिस गर्ल ऑन हर 13th बर्थडे by his father, by her father. Understood? It was eventually translated from the original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. पब्लिश हुई ये डायरी। ये डायरी ने आते ही इतना हंगामा कर दिया, इतना तहलका मचा दिया, लोगों ने पसंद किया, एक्सेप्ट किया, और जो बच्ची 10 साल की थी वो पूरी दुनिया के बच्चों के लिए स्टार बन गई, हीरो बन गई। चिल्ड्रन लव्ड रीडिंग। कोई अंदर मसाला नहीं था, कोई सस्पेंस, थ्रिलिंग, कोई ऐसी नहीं थी, सिर्फ अपनी काली खेली भाषा में सब कुछ अपने दिन का लिखा था। कि 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा क्या समझता है, कैसे रिएक्ट करता है, बाहर का माहौल कैसा, और बाहर के माहौल के हिसाब से अपने आप को वो कैसे बचाता है, वो सब कुछ उस डायरी में था। आया समझ में? It was eventually translated from the original Dutch into many languages and became one of the world's most sought books after. Understood? There had been several films, televisions and theatrical production. कई सारी शॉर्ट फिल्म्स बनी है, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनी है। अभी मैंने लेसन जब शुरू किया तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया ना
कि शिंडर्स लिस्ट नामक जो मूवी थी, अगर वो आपके पास टाइम है तो वो जरूर देखना। बहुत क्लीन मूवी है, पूरे परिवार के साथ देखना, ताकि आपके पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि क्या हुआ था उस वक्त। बहुत बढ़िया सी मूवी है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम, शिंडर्स लिस्ट, SCHINDER, शिंडर, LIST, लिस्ट। शिंडर नामक जो लड़का था, जैसे एनी फ्रैंक का अभी टॉपिक पढ़ रहे, ठीक उसी तरह 16-17 साल का लड़का कैसे अपने भाई बहन को बचाता है, मतलब नॉट रियल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बट हिज फैमिली, Jewish फैमिली, एंड वन बाय वन risking his own life in the middle of the war, he saved 167 Jewish lives. तकरीबन 250 के करीब लोगों को बचाया था। इंसानियत जिंदा थी। बहुत बढ़िया सी मूवी है। एनी फ्रैंक पे भी मूवी बनी है, देखना कभी। हम There had been several films, televisions, and theatrical productions, and even an opera. Opera means one type of नाटक which is performed in England. जैसे हम स्टेज देखते हैं, नाटक देखते हैं, उधर ओपेरा का जमाना है, right? Based on the diary. Described as a work of mature and insightful mind. Insightful means thinking mind. बच्ची की उम्र 10-12 साल थी, लेकिन अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा वो मैच्योर हो गई थी, समझू हो गई थी। फिजिकल उम्र, उसकी उम्र 10-12 साल थी, लेकिन उसमें मैच्योरिटी 25 साल के यंगस्टर से भी ज्यादा थी, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था, आसपास का माहौल ही कुछ ऐसा था, तो उसके लिए वो करना पड़ता है। ऐसा समझ में? द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim. Now, there are some words which has to be matched. What is meant by journal? A book which is separate, having a separate space of page on each day, which you write down the thoughts and feelings, what happened on the day. That is called journal. आपके साथ पूरे दिन में जो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आपका रिएक्शन जो हम लिखते हैं शाम को, उसको जनरल बोलते हैं. डायरी, अ फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, अ पीरियड ऑफ टाइम और इवेंट रिटर्न एवरी डे. जनरल रोज लिखी जाती है, डायरी में हमारी पूरी लाइफ यात्रा होती है. अंडरस्टूड? लॉग, अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन्स ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, दैट इज कॉल्ड log. These are different words of writing which I am explaining at present. It may be not a part of your exam, but it is a part of your understanding. Memoirs, a record, a written records of events with time and dates, usually official. जहाँ हम जॉब करते हैं, जब हम काम करते हैं, वो काम का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको मेमोर्स बोलते हैं. So these are the differences in writing. Everything is a written record, but they are having a different name. Take for example, journal, रोज लिखी जाती है, रोज के एक्सपीरियंस. डायरी, पूरी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लिखी जाती है, रोज बरोज जो घटना बनती है. हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे जिसकी जिसकी जितनी इच्छा, वैसे हम अच्छी बुरी सब घटनाएं उसमें कैद कर लेते हैं, तो उसको डायरी बोलते हैं. लॉग मीन्स रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर डे वर्क. आज मैं स्कूल में आता हूं, तो आज मैंने स्कूल में कौन सा काम किया वो मैं रिकॉर्ड रखूंगा, स्कूल को देगा, तो उसको हम लॉग बोलते हैं.
then a written record of events and the time and date, usually unofficial. Right? So, let us think about that. Here are some personal entries of the records. ये आपको होमवर्क में करना है. ऊपर 4 नाम दिए हैं और 4 सिचुएशन दी है. चारों में से कौन सी सिचुएशन कहां फिट होती है वो आपको होमवर्क में भेजना है. राइट? नाउ 4.1, my title will be 4.1. In textbook plus material. Topic 4.1, page 29. Material. Right? I am on page number 29 of material. 4.1. Writing in a diary is really strange experience for someone like me. Here me stands for that little one. जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया. आया समझ में? Not only because I have never written anything before. She was not a professional writer. She did not possess any skill of writing. But she wanted to make it remember for coming days. And that is why she started to write a diary. And that diary was also gifted on her 13th birthday in 1942 by her father. तो बच्ची के दिमाग में आया होगा कि चलो उसका यूज कर लेते हैं भैया. है समझ में? Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing. म्यूजिंग એટલે टॉक. काली गेली भाषा में जो 10-12 साल का बच्चा बात करता है अपनी लैंग्वेज में, उसको म्यूजिक बोलते हैं. राइट? म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old चाइल्ड, स्कूल गर्ल. 13 साल के बच्चे के पास कौन सी भाषा होगी? कोई भाषा नहीं है. फिर भी वो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी सोच से कुछ कहना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है. वो सब डायरी में है. अंडरस्टूड? Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have even greater need to get all kinds of my chest. That means I want to relieve myself from the burden which I am facing. कौन सा burden होगा हमको तो मालूम नहीं. जो मेरे सर पे बोझ है, जो मेरे सर में सब कुछ भरा हुआ है, वो मैं इधर लिख के थोड़ी सुकून महसूस करना चाहती हूं. अपने आप को थोड़ा हल्का फुल्का महसूस करना चाहती हूं. चेस्ट बोलो या सर बोलो, दोनों एक ही है. मेरे को भी मालूम है दोनों स्पेयर पार्ट डिफरेंट है. चेस्ट इधर है, ब्रेन सर इधर है, लेकिन इसको ऐसे जनरली बोला जाता है कि जो विचार मेरे दिमाग में भरे हैं, जो आसपास रोज घटनाएं होती है, वो सब मेरे दिमाग में भरी हुई है. एंड आई वॉन्ट टू राइट इट डाउन सो आई कैन रिलीव माई सेल्फ. क्यों? क्योंकि वो टाइम था, खेलने कूदने पे पाबंदी थी. अरे खेलने कूदने क्या, घर में भी आजादी से घूमने से पाबंदी थी. अगर कोई बाहर का देख गया
तो भी उसकी कीमत मौत से चुकानी पड़ती थी. देयर वॉज नो प्लेस ऑफ सॉरी. बच्चे भी डर डर के रहते थे. उस वक्त बच्चे भी मैच्योर हो गए थे. खेलना कूदना सब कुछ बंद हो गया था. दिन के उजाले में भी वो बाहर आने से डरते थे, क्योंकि एक गलती, एक अनजानी सी गलती पूरे परिवार को मौत की सजा दे सकती थी. क्योंकि अगर कोई बच्चा पकड़ा गया कोई घर में से, तो आर्मी के सोल्जर्स को मालूम ही है ये बच्चा अकेला थोड़ा होगा, उसका परिवार पूरा होगा. इधर कहीं से भी वो परिवार को ढूंढ निकालते थे और उसको कंसंट्रेशन कैंप भेजे जाते थे, भेज देते थे, जहां सिर्फ मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता था. आया समझ में? सो इवन द माइनोरेस्ट स्लाइटेस्ट ऑफ मिस्टेक, these people had to pay with their whole life, whole family, not a single person, whole family. तो ऐसे माहौल में वो बच्ची के सर पे कितना बोझ होगा, कितना डर होगा. तो अपना डर रिलीव करने के लिए वो अपने फ्रेंड बना ली थी डायरी को. सब कुछ लिखती थी, अच्छा बुरा सब कुछ, ताकि अपने मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए. जैसे हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमारे पे बोझ आता है, तो हम हमारे जो करीबी दोस्त होते, मित्र होते, उसके साथ हम बात शेयर करते, चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, कोई भी हो सकता है. उसके साथ हम ये बात शेयर करते हैं. ये शेयरिंग के बाद हमको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है. वी फील इजी बिकॉज वी हैव शेयर्ड अवर व्यू, our talk. We may get some guidance, we may get some, you can say, guidelines. एक से भले दो, दो से भले तीन, ऐसा होता है ना. लेकिन ये वॉर के माहौल में एक 10-12 साल का बच्चा कहां जाए, किसके साथ बात करे? क्योंकि चारों ओर तबाही का मंजर था. कहां जाने का? घर में भी छुप छुप के रहना पड़ता था. तो ऐसे माहौल में एक 10-12 साल का बच्चा क्या कर सकता है? अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर कर सकता है? तो उसने डायरी को इंस्ट्रूमेंट बना लिया. है समझ में? म्यूजिक ऑफ 13-year-old girl. Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all things off my chest. इसीलिए मैं लिखना चाहती हूं. Papers are more patience than people. See, what is the opening word? Papers have more patience than people. क्योंकि पेपर निर्जीव है. हम जो भी लिखेंगे वो सालों तक रहेगा. लोग भूल जाएंगे, लोग मुंह फेर लेंगे, लोग चले जाएंगे. पेपर्स कभी कहीं नहीं जाते. सो दैट इज वाई शी हैव डिलीवर्ड दिस स्टेटमेंट. पेपर्स हैव मोर पेशेंस देन पीपल. अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, कोई लोग आपकी बात 5 मिनट सुनेंगे, 10 मिनट सुनेंगे, लेकिन पेपर ऐसा मना नहीं करेगा कि आप 1 घंटे से लिखते हैं तो अभी लिखना बंद करो, मैं थक गया हूं. दैट मीन्स पेपर आर मोर बेटर फ्रेंड्स देन पीपल. आए समझ में? I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand. Chin means ये भाग. जैसे मैं घर पे बैठी थी डिप्रेशन में, सोचती थी क्या करूं. तब दिमाग में अचानक विचार आया कि चलो कुछ लिखते हैं, यादें लिखते हैं, ताकि एक समय भी चला जाए और डिप्रेशन में से भी अपने आप में बाहर आ जाओ. और अचानक डायरी लिखने का प्रोग्राम बना. इट वॉज नॉट प्लान्ड. बोर्ड एंड लिस्टलेस. लिस्टलेस मीन्स नथिंग टू डू, क्या करना है. वंडरिंग वेदर आई स्टे इन और गो आउट. अंदर रहूं बाहर जाऊं,
बाहर जाने में तो बहुत बड़ा खतरा था, सोचती थी बाहर जाओ, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। अभी मैंने बताया क्यों नहीं थी। फाइनली I stayed where I was brooding. Brooding means thinking. I sat and think for a long time. क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। इसके बाद उसने लिखने का फैसला किया। आए समझ में? Yes, papers does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly written to as a diary. मेरे को मालूम थे लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, और अगर सुनेंगे तो टाइम नहीं देंगे। पेपर्स मेरे को सफिशिएंट टाइम देंगे। मैं अपने दिमाग में जो भी है वो पेपर्स में लिखूंगी ताकि वो खत्म हो जाए। सो इधर आई एम स्टॉपिंग माई लेक्चर, नाउ इट इज योर पार्ट टू टेक योर होमवर्क, राइट? इन होमवर्क you get question number 1, question number 1 and 2 written from material or textbook. बराबर? You have to write question number 1 or 2. Right? In next lecture, we'll continue with some more work. And continue with our topic. Right? So, I hope you understood this. And I hope you enjoyed this lecture. अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था कुछ। उसके बाद हम सोचेंगे, राइट, नए टॉपिक के बारे में। सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। सी यू चिल्ड्रन, गुड बाय, टेक केयर।